So this is the table which is used for representing the motion graphically. So the topic will be graphical representation of SHM. In graphical representation of SHM, a question is asked in the examination. Till now it is not asked, but it's always there in the important question, list of important questions. So graphical representation of SHM, you have to show some graph. You have to represent all this motion using a graph. So in that graph, you need to draw an y-axis and an x-axis. Along this x-axis, you will represent the time. जैसे कि समय के साथ मोशन आगे होते जाता है तो you will represent time along this x-axis. And along y-axis, you will represent the motion of particle. Means जैसे कि पार्टिकल अगर एम्पलीट्यूड पे जा रहा होगा मीन पोजीशन से तो हम मीन पोजीशन यहाँ दिखा देंगे y एक्सिस पर. वैसे तो उसको y इज इक्वल टू 0 लिखना चाहिए मगर हम x इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं. यू कैन राइट डाउन y ऑल्सो, क्योंकि अगर तुम खड़े में मोशन कर रहे हो, वर्टिकल में मोशन कर रहे हो तो फिर y एक्सिस आएगा, है कि नहीं. मगर हाँ, बुक में क्योंकि x एक्सिस यूज किया तो तुम x एक्सिस बोल सकते हो. इफ यू वांट टू राइट, अगर बुक वाले y एक्सिस यूज करे तो यू कैन यू राइट डाउन y ऑल्सो. मगर जब ये एम्पलीट्यूड पे पहुंचेगा तो x की वैल्यू क्या होंगी, प्लस है. जब ये पार्टिकल y निगेटिव एम्पलीट्यूड पे पहुंचेगा तो क्या वैल्यू होंगी उसकी, माइनस. तो इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. जैसे कि हमारे ये जो पार्टिकल है, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऑक्सीलेशन परफॉर्म कर रहा है. तो इसकी मैंने 3 पोजीशन बताई है बेसिकली. एक मीन पोजीशन जिसको हम बोलते हैं x इज इक्वल टू 0, दूसरी है एम्पलीट्यूड पोजीशन जिसको हम बोलते हैं x इज इक्वल टू प्लस ए, एंड दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू माइनस ए. एंड ये जो हमारी एम्पलीट्यूड पोजीशन है और मीन पोजीशन है ये हमको यहाँ पर दी हुई है. तो इसी में ऑक्सीलेशन हो रहा है आगे पीछे, जिसको हमको ग्राफिकली बताना है, मतलब ग्राफ के हिसाब से बताना है कि समय के साथ बॉडी की क्या क्या पोजीशन रही, क्या वो मीन पोजीशन पे, क्या वो एम्पलीट्यूड पे, क्या वो निगेटिव एम्पलीट्यूड पे, कितने टाइम में वो कहा था. तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने टाइम को यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट किया हुआ है कि पहला टाइम जो हम लेके चल रहे कि टाइम इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर जब मोशन जैसे स्टार्ट हुआ होगा तब टाइम कितना लेके चलेंगे, 0. फिर टाइम को इसी एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ाते चलेंगे. तो जो थोड़े समय के बाद जो समय हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है दैट इज t/4, मतलब 1/4 of the whole oscillation. Okay, then we considered t/2. Okay, that is the next time. So this is the table which represents different times. So we use 0 and t/4 and then t/2 and then we'll take 3t/4. So that is how you have to represent the time along the x-axis. And the last time, the last point we are taking as t. If you want to increase it furthermore, you can use 1t/4, 2t/4, 3t/4, then 4t/4, after which comes 5t/4, है ना. And you can further extend the graph if you want, but it doesn't matter right now. This much points will be efficient to draw the graph. And if you want, instead of this writing t, if you want to represent it by angles, so in place of 0, you can use 0 omega t, means omega value of omega t as 0 in place of 0. And in place of t/4, you can use pi/2. In place of t/2 in the graph, what you can use? Here you can use pi. So like that, if you don't want to show time period there, you can also show theta there. Okay, theta there also. So like this, you have to represent. Then we'll discuss about displacement. Okay, so in first case, what we are seeing that particle is starting from mean position. We are taking one situation in which particle is starting SHM from mean position. Mean position समझ में तो आ ही गया होगा कि पार्टिकल ने कहाँ से चालू किया, mean position. In that particular case, we write this equation is in this way, that is x is equal to a sin omega t, which we have discussed in the last lecture, है ना. इसमें phi की वैल्यू कितनी लेते हैं, 0, क्योंकि उसने exactly कहाँ से स्टार्ट किया है, मीन पोजीशन से. मीन पोजीशन पे इनिशियल एंगल कितना होता है, 0, तो इसलिए phi की वैल्यू भी क्या होंगी, 0. phi मतलब स्टार्टिंग एंगल. तो इसलिए इस वाली इक्वेशन में मैंने phi नहीं लिखा है. आई हैव जस्ट रिटन ओमेगा टी, जिसकी समय के साथ वैल्यू चेंज होंगी. ओमेगा टी की वैल्यू 0 टाइम में कितनी वैल्यू थी, 0. ओमेगा टी की वैल्यू t/4 टाइम में कितनी थी, pi/2. ओमेगा टी की वैल्यू t/2 टाइम में कितनी थी, पाई. ओमेगा टी की वैल्यू 3π/2 थी कितने टाइम में, 3t/4. तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ओमेगा टी एट डिफरेंट टाइम्स, क्योंकि समय के साथ एंगल बढ़ता चला जाएगा. Okay, now if we'll differentiate it with respect to x, if we'll differentiate it with respect to x,
what you will get velocity, क्योंकि dx by dt क्या होता है, velocity. Derivative of x with respect to time क्या होता है, velocity, that we have studied in the last lecture, that is rate of change of displacement is velocity. तो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट वी विल गेट, फर्स्ट वी विल गेट a, क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर ही लिख देते हैं. फिर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, और साइन किसका एंगल था, ओमेगा टी का, तो इसलिए cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी बाहर निकल जाता है क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट है, दैट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर कि ओमेगा कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन में कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है डिफरेंशिएट करते समय. तो ओमेगा ओमेगा टी में से ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर चला गया, ए कांस्टेंट है तो बाहर रह गया. फिर इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी की इक्वेशन को, तो तुमको पता है कि dv अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब a, और ये cos ओमेगा t का ओमेगा फिर से बाहर आ जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएशन किया है तो ये cos ओमेगा t का ओमेगा एक बार फिर से बाहर आ जाएगा. तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, दैट्स व्हाई आई रिटन ओमेगा स्क्वायर. cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन. तो माइनस मैंने पहले लिख दिया हियर इन द स्टार्टिंग ऑफ द इक्वेशन, एंड cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी यहाँ लिख दिया. तो अभी क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, यू कैन राइट डाउन दिस ग्राफ एज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. ओके, तो दिस कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. तो हमने अभी क्या किया, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाली है. अब क्या करेंगे, धीरे धीरे वैल्यूज पुट करते चलेंगे. तो तुम देखो कि पार्टिकल ने कहाँ से स्टार्ट किया, मीन पोजीशन से. तो पहले ये इस ग्राफ में देखो, पहले ये मीन पोजीशन पे होगा, फिर सेकेंड टाइम में ये कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड में जाएगा, मतलब t/4 टाइम में ये कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड में जाएगा. जब टाइम जीरो था तो पार्टिकल भी कहाँ था, मीन पोजीशन, मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट में था. देखो एक्स की वैल्यू जीरो डाली, फिर एक्स की वैल्यू क्या डाली, प्लस है, क्योंकि मीन पोजीशन से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी में जाएगा, लाइक दिस, है ना. फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, फिर वापस से मीन पोजीशन में आएगा, मतलब फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, जब मीन पोजीशन पे वापस आएगा. फिर उसके बाद क्या होगा, निगेटिव एम्पलीट्यूड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है, मतलब ये वाले एम्पलीट्यूड पे आ जाएगा. फिर आंसर में फिर से वापस क्या होगा, निगेटिव एम्पलीट्यूड से वापस मीन पोजीशन में आएगा, फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है, जीरो. तो लाइक दिस यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस होल सिचुएशन. एंड अब हम क्या करेंगे, यही पॉइंट्स को ग्राफ में ले लेंगे. तो पहले देखो, टाइम जब जीरो था तब जीरो डिस्प्लेसमेंट था, जब टाइम t/4 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, प्लस है. तो देखो ये t/4 टाइम पे हमने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, प्लस है. फिर उसके बाद वापस से t/2 टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, जीरो, तो t/2 टाइम पे वापस से जीरो. देखो ये जीरो पॉइंट है, जीरो डिस्प्लेसमेंट, है ना. और फिर उसके बाद जीरो पॉइंट ले लिया. फिर उसके बाद 3t/4 टाइम में कितना था, माइनस है, तो 3t/4 ये हो गया माइनस है, और ये हो गया 3t/4, ये दोनों मिला के ये वाला पॉइंट मिलेगा. फिर वापस से तुम देखो माइनस ए के बाद फिर से वापस कौन से पॉइंट में चला गया, जीरो, मतलब ये वाले पॉइंट में. अब तुमको पता है इसके बाद कहाँ जाएगा, वापस से पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे, मतलब यहाँ पर आएगा दिस पे. अब ये सारे पॉइंट को मिलाना है, तो देखो ग्राफ ऐसा बनेगा, लाइक दिस. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज sinusoidal wave. This is called a sinusoidal graph. If you find such word, don't confuse yourself. This is a sinusoidal graph. Okay, है ना. ऐसे ग्राफ को हम साइनसॉइडल ग्राफ बोलते हैं, कर्व ग्राफ बोलते हैं. ये अपने टाइप के स्पेशल ग्राफ होते हैं जिसमें कर्व जैसे ग्राफ आते हैं, वेव जैसे ग्राफ आते हैं. ओके, लाइक दिस. स्पेशली ये ग्राफ यहाँ से जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब तुम्हारी इक्वेशन ऑब्वियसली साइन में होंगी. ये देखो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन किस में है, साइन में. अगर तुम्हारी इक्वेशन साइन में है, और वो भी कैसा साइन, देखो x इज इक्वल टू प्लस ए साइन, प्लस में इक्वेशन, साइन की इक्वेशन किस में, प्लस में. तो स्टार्ट करेगा और पहले पॉजिटिव साइड में जाएगा, फिर वापस मीन पोजीशन पे आके फिर कौन सी साइड में जाएगा, निगेटिव, फिर वापस से मीन पोजीशन से आके कौन सी पोजीशन पे जाएगा, पॉजिटिव. इस तरीके से वेव बनती है. अगर कोई भी पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और ऊपर जा रहा है, मतलब साइन वेव है. कौन सी वेव इक्वेशन है, साइन वेव इक्वेशन है, मतलब साइन ग्राफ बनेगा. तो ऐसे ग्राफ को हम साइन ग्राफ भी बोलते हैं. फिर ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी. तो वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन लेंगे. तो पहले तो वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वेलोसिटी इक्वेशन
तो लेंगे ही लेंगे, जो कि हमने सेकंड पॉइंट में लिखी हुई है। इफ यू कैन सी हियर, दिस इक्वेशन इज v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। एंड यू नो कि ग्राफ बना रहे तो ऑब्वियसली सबसे कम वेलोसिटी कितनी होंगी, 0। सबसे ज्यादा वेलोसिटी क्या होंगी, बताओ सबसे ज्यादा वेलोसिटी क्या होंगी, इस इक्वेशन को देख के बताओ। इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा वेलोसिटी हो सकती है a ओमेगा। कॉस की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, दैट इज 0 से 1 के बीच में या 0 से -1 के बीच में, क्योंकि कॉस की ज्यादा से ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है +1 और छोटी से छोटी वैल्यू होती है -1। तो आफ्टर ऑल है तो 1 ही ना, चाहे +1 हो या -1। अगर कॉस की वैल्यू 1 हो सकती है मैक्सिमम और मिनिमम, तो v की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, a ओमेगा, क्योंकि a ओमेगा से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉस की वैल्यू तो 1 है। मोस्टली कॉस की वैल्यू क्या हो जाएंगी मैक्सिमम पे 1। तो इसलिए v की जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो सकती है वो होती +a ओमेगा या -a ओमेगा। ओके, तो लाइक दिस v की वैल्यू +a ओमेगा -a ओमेगा हमने बताया ग्राफ में, और कम से जो बीच की वैल्यू बताई हो कितनी बताई उसकी, v इज इक्वल टू 0। ओके, तो वेलोसिटी 0 मतलब रेस्ट पे आ गया, वेलोसिटी a ओमेगा मतलब पॉजिटिव साइड में जा रहा तेजी से एकदम फुल स्पीड के साथ, -a ओमेगा मतलब निगेटिव साइड में जा रहा फुल स्पीड के साथ, a ओमेगा स्पीड के साथ। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखना v मैक्स का फॉर्मूला होता है a ओमेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v मैक्स, a ओमेगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर v मैक्स। सो v मैक्स इज इक्वल टू a ओमेगा। नाउ विल टेक द पॉइंट्स। कॉस ग्राफ जो होता है ना उसकी पहचान ऐसी होती है, देखो ग्राफ देखो, इक्वेशन कैसी है, वेलोसिटी की इक्वेशन है यहाँ पे a ओमेगा cos ओमेगा टी, इक्वेशन cos में है प्लस पॉजिटिव साइन के साथ है। ओके, तो cos की इक्वेशन ना कभी भी पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होती है, यानी ये एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होती है, नॉट पॉजिटिव साइड, एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होती है। ठीक है, लेट मी टेक दिस पॉइंट्स फ्रॉम द फर्स्ट ग्राफ। यानी पॉइंट मैच करने पड़ेंगे ना, तो पहले वाले ग्राफ के पूरे पॉइंट में यहाँ मैच कर लेता हूँ, ताकि हम ग्राफ प्रॉपरली बना सके सेम टाइम पे, कि सेम टाइम पे क्या वेलोसिटी रही होगी पार्टिकल की, क्या नहीं रही होगी वेलोसिटी उसकी, लाइक दिस। तो ये जो रेड लाइन मैंने बनाई ना, ये सब सेम टाइम पीरियड के लिए, मतलब वो टाइम में बार बार नहीं लिखूंगा, कंसिडर करके चलना है कि ये सारी प्लेसेस पे वही टाइम है जो फर्स्ट ग्राफ में बताया था हमने। सेम टाइम पे हम देखेंगे क्या क्या वेलोसिटी। कॉस ग्राफ है तो ऐसा चलेगा, पॉजिटिव से चालू होगा, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड से, +a ओमेगा से चालू होगा, कॉस ग्राफ है। साइन रहता तो मीन पोजीशन से चालू होता, जैसे कि फर्स्ट ग्राफ में। सेकेंड ग्राफ में एम्पलीट्यूड से चालू किया, क्योंकि कॉस ग्राफ है, कॉस ग्राफ हमेशा कहाँ से चालू होगा, एम्पलीट्यूड। फिर वही निगेटिव साइड में जाएंगे, वेट, तो वही हम फिर निगेटिव साइड में जाएंगे, उसको लेके निगेटिव एम्पलीट्यूड तक, -a ओमेगा तक, फिर वापस 0 पे आएंगे, फिर वापस पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे जाएंगे, फिर वापस 0 पे आएंगे। तो दिस वे इट विल वर्क। एंड yes, this way it will work. And here you will have time period t by 4, and here you will have time t by 2, and that correspondingly time जो x axis पे जैसे जैसे तुम ग्राफ आगे बढ़ाओगे तो टाइम भी बढ़ता चला जाएगा। एंड नाउ यू सी कि सबसे पहले वैल्यू क्या है कॉस ग्राफ की वजह से, 0 टाइम पे देखो वैल्यू क्या है वेलोसिटी की, +a ओमेगा, दिख रहा ना पॉइंट, जो पॉइंट मैंने 0 टाइम पे लिया है वो क्या है, +a ओमेगा, है ना। t by 4 पे क्या लिया है मैंने वेलोसिटी, देखो तो 0। फिर उसके बाद t बाय 2 पे देखो तो क्या लिया वेलोसिटी, देखो देखो क्या लिया वेलोसिटी t बाय 2 पे, -a ओमेगा, है ना, निगेटिव साइड में। फिर उसके बाद t बाय 4, 3t बाय 4 पे देखो क्या वैल्यू ली है, 0। फिर उसके बाद देखो ये जो t टाइम है, ये t टाइम में देखो क्या वैल्यू ली हुई है, देखो क्या वैल्यू है, +a ओमेगा, है ना। तो इस तरीके से ये वैल्यू ली +a ओमेगा। फिर एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन की इक्वेशन देखो तो कौन सी इक्वेशन है, साइन इक्वेशन। देखो ये एक्सेलरेशन का जो ग्राफ दिया हुआ है दैट इज अ साइन इक्वेशन। तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, हाउ विल यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन। सो फॉर ड्राइंग द एक्सेलरेशन ग्राफ देयर यू आल्सो नीड सम हेल्प। समझना पड़ेगा कि साइन ग्राफ दो तरीके से ड्रॉ किए जा सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन कम से कम कितना हो सकता है। तो एक्सेलरेशन कम से कम क्या होगा भाई, 0 होगा। एक्सेलरेशन राइट की तरफ है तो क्या होगा, प्लस में आएगा। एक्सेलरेशन निगेटिव साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, बॉडी ऐसे घूमती है ना आगे पीछे, टू एंड फ्रो, आगे पीछे ऐसे बॉडी घूमती है। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव साइड में तो प्लस, निगेटिव साइड में तो माइनस। वो स्प्रिंग की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है दैट आई एम स्पीकिंग अबाउट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ग्राफ दिखाने के लिए पॉजिटिव लिया, और नीचे ग्राफ में क्या लिया उसका, निगेटिव। अच्छा, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बताओ तो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a ओमेगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू तो फिर से
ज्यादा से ज्यादा +1 हो सकती है, या तो ज्यादा कम से कम कितनी हो सकती है, -1। तो बचा कौन भाई, ए ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हो सकती है +a ओमेगा स्क्वायर और -a ओमेगा स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में हम क्या बढ़ाएंगे, टाइम, है ना। तो उस डायरेक्शन में हम टाइम को वापस से बढ़ा लेंगे और फिर से ग्राफ को एक्सटेंड कर लेंगे रेड कलर की हेल्प से, ताकि वो टाइम हमको सेम टाइम पे हम सेम ग्राफ बना सके लाइक दिस। तो टाइम अपने को प्रॉपर मिलता रहे सारी चीज़ों का, इफ यू अंडरस्टैंड दिस। सो हम्म अब एक्सेलरेशन का ग्राफ देखो, ये है साइन ग्राफ, तो पक्का है कि मीन पोजीशन से ही चालूंगा, मतलब बीच वाली पोजीशन से चालूंगा, क्योंकि साइन ग्राफ है। मगर साइन निगेटिव ग्राफ है, देखो ये माइनस का साइन है यहाँ पे, देखो ये इक्वेशन निगेटिव है, इसमें माइनस का साइन है, इफ यू कैन सी क्लियरली। तो इसलिए ग्राफ मीन पोजीशन से चालू तो होगा, बट निगेटिव साइड में जाएगा, पहले कौन से साइड में जाएगा, निगेटिव साइड। फिर उसके बाद वापस जीरो पे आएगा, फिर कौन से साइड में जाएगा, पॉजिटिव साइड। फिर वापस जीरो आएगा, फिर कौन से साइड में जाएगा, निगेटिव साइड, लाइक दिस। ओके, तब मुझे बताओ कि पहला पॉइंट कौन सा आया ग्राफ में, 0। फिर बोलो t/4 पे ग्राफ में कौन सा पॉइंट आया, देखो देखो देखो, ये नीचे वाला पॉइंट आया -a ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे पॉइंट आया -a ओमेगा स्क्वायर। ओके, फिर देखो t/2 पे कौन सा पॉइंट आया, वापस से बीच वाला पॉइंट, मतलब 0। फिर टॉप वाला पॉइंट आया, मतलब कौन सा पॉइंट आया, देखो +a ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो साइन ग्राफ जो होता है ना, माइनस साइन ग्राफ, चाहे वो साइन ग्राफ कोई सा भी हो, हमेशा चालू तो मीन पोजीशन से ही होता है। अगर प्लस वाला है तो ऊपर की तरफ जाते हैं पहले बार, अगर माइनस साइन वाला है तो कहाँ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, लाइक दिस। ओके, एंड यू कलेक्ट द पॉइंट्स और फिर उसको फिलअप कर देते हो टेबल में, एंड दैट यू विल गेट द टेबल। ओके, now this is the table when the particle starting SHM from mean position। तो हमको जो x की इक्वेशन है वो साइन में मिलती है, v की इक्वेशन कॉस में मिलती है, और एक्सेलरेशन की इक्वेशन साइन में मिलती है। तुम क्या करोगे, आज घर में पूरा इसको रिवाइज करोगे, प्लस तुम्हारा होमवर्क ये रहेगा कि यू विल डू द सेम थिंग फॉर पार्टिकल स्टार्टिंग एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही चेंज होगा कि x की वैल्यू अब कॉस में आएंगी, क्यों, क्योंकि वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से, है कि नहीं। जैसे कि देखो ये इक्वेशन, ये कहाँ से चालू किया, इसने मेन पोजीशन से चालू किया क्या, 20 से चालू किया क्या इस ग्राफ ने, नहीं। इस ग्राफ ने कहाँ से चालू किया, एम्पलीट्यूड से चालू किया, पॉजिटिव वैल्यू से चालू किया, मैक्सिमम वैल्यू से चालू किया। तो कॉस का जो पहचान है वो यही है कि कॉस ग्राफ जो होता है वो हमेशा एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है, लाइक दिस। ओके, तो इसीलिए वो एम्पलीट्यूड वाली इक्वेशन, कॉस वाली इक्वेशन जो है वो एम्पलीट्यूड को शो करती है, डिनोट करती है। ओके, सो तुम्हारे इक्वेशन में आएगा a cos ओमेगा t, जो तुमको घर से करना है, दैट इज पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तुम्हारी v की इक्वेशन जो माइनस साइन में आ जाएगी, माइनस साइन मतलब कौन सा ग्राफ, इस वाले में कौन सा ग्राफ है माइनस साइन, ये लास्ट वाला है ना। तो ऐसा ग्राफ मिलेगा तुमको वेलोसिटी के केस में, और फिर साइन का डेरिवेटिव वापस से क्या हो जाता है, कॉस। तो देखो डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किस में आएगा, माइनस कॉस में, क्योंकि माइनस का साइन तो पहले से है ही। तो माइनस कॉस बोले तो कहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, निगेटिव एक्सटिविटी से, मतलब निगेटिव वैल्यू से स्टार्ट होगा, निगेटिव वैल्यू से स्टार्ट होगी, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर ऐसा। तो वो ग्राफ तुमको किसके लिए मिलेगा, एक्सेलरेशन के लिए, जो तुमको होमवर्क दिया उसमें। ओके, दैट इज पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो दिस मच टास्क यू हैव टू परफॉर्म टुडे फॉर योर होमवर्क, सो दैट आई कैन चेक इट टुमारो, एंड यू हैव टू शो मी विद इन द कैमरा कि तुमने पार्टिकल स्टार्टिंग एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन पूरा किया है। Then I'll have certain question based on this topic, and how, what type of question it will I'm going to ask you. I'll give you some sort of review on that. After completing this table, your 4 marks is definitely coming out from this derivation. उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि 4 मार्क्स तो पूरे मिलेंगे मिलेंगे अगर ये डेरिवेशन आता है तो। बट 1 लाइन क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं इस ग्राफ के ऊपर, कि वो पूछता है कि कितना एंगल का डिफरेंस है ये एक्स के ग्राफ में और ए के ग्राफ में, जब पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है मीन पोजीशन से, मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की इक्वेशन साइन में है, मतलब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मीन पोजीशन से, क्योंकि इक्वेशन साइन में है। कॉस में होती तो कहाँ से स्टार्ट करता है, एम्पलीट्यूड से। तो अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, उसकी इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन साइन में है, तो उसकी एक्सेलरेशन की इक्वेशन किस में होगी, माइनस साइन में। एक्सेलरेशन की इक्वेशन किस में होगी, माइनस साइन में। तो वो पूछता है कि एंगल का डिफरेंस बताओ, फेज डिफरेंस बताओ
फेज डिफरेंस बताओ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फेज डिफरेंस बताओ, ऐसा वो पूछता है, यानी एंगल का डिफरेंस। तो तुम ध्यान से देखो, कोई मुझे बता सकता है क्या इस फर्स्ट ग्राफ में और इस थर्ड ग्राफ में कितने एंगल का डिफरेंस है? मतलब फर्स्ट ग्राफ में और सेकंड ग्राफ में हमने कितना छोड़ के स्टार्ट किया है? ये फर्स्ट ग्राफ तो एकदम परफेक्ट जगह से स्टार्ट हुआ है, दैट इज मीन पोजीशन है ना, तो इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। ये थर्ड ग्राफ जो है ये कितना छोड़ के स्टार्ट हुआ है, कितना एंगल छोड़ के स्टार्ट हुआ है? एनीबडी कोई बता सकता है दोनों ग्राफ में कितना डिफरेंस है? एनी वन ऑफ यू? ओके, लेट मी गिव यू द हिंट कि ये पोर्शन मिसिंग है, इतना पोर्शन। ये थर्ड वाले ग्राफ का इतना पोर्शन इसलिए मिसिंग है क्योंकि ये इक्वेशन माइनस साइन में थी। अगर ये प्लस साइन में होती तो ये ग्राफ पूरा ऐसा होता ना ऊपर से, तो इसका इतना पोर्शन मिसिंग है क्योंकि ये माइनस साइन इक्वेशन वाला ग्राफ है, इसलिए वो लास्ट वाला पोर्शन उनको नहीं दिया हुआ। तो प्लीज टेल मी कि क्या डिफरेंस होगा। आधा सर्कल मतलब कितना एंगल हुआ? आधी आधा ग्राफ छूटा है ना पूरा, आधा सर्कल टाइप का, तो कितना एंगल मिस हो गया? बोलो, आधे सर्कल का एंगल क्या होता है? बोलो, एनीवन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाफ सर्कल? कितना एंगल कवर करता है हाफ सर्कल? दैट इज यस 180 डिग्री, दैट इज पाई रेडियन। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में पूरे हाफ वेव का गैप है, इसलिए इन दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस है, 180 का फेज डिफरेंस है। इस वाले में देखो क्या है, तो इस वाले में डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ में और वेलोसिटी वाले में आधे से भी आधी वेव का गैप है ना, आधे से आधी वेव का गैप है। क्योंकि ये सेकंड वाला जो ग्राफ है वो कॉस वाला ग्राफ था, देखो कॉस वाला ग्राफ था, वेलोसिटी की इक्वेशन कॉस है। तो 90 का गैप है भाई, आधा सर्कल बोले, आधी ग्राफ बोले, आधा ग्राफ मतलब ये क्वार्टर ग्राफ जो है यहाँ से यहाँ तक का मिस है, तो ये क्वार्टर ग्राफ का मतलब क्या हुआ? दैट इज 90 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट यानी यहाँ से यहाँ तक ये दो ग्राफ के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है, और ये डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में कितने का डिफरेंस है? 180 का। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का अंतर पूछोगे तो क्या आएगा? इन दोनों के बीच में भी 180 का अंतर है, सॉरी 90 का अंतर है। किसके किसके बीच में? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितने का अंतर है? 90 का अंतर है। तुम कंपेयर कर सकते हो उसको, मिसिंग पार्ट ऐड कर दो, तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, so that is how this all things are discussed. So this is the phase difference related to this part, graphical representation. And yes, we finish our lecture over here.